Hello, Assalamu alaikum, good morning and welcome. You're watching A Sports, 10 Sports and the ARY's app. मैं हूं Fakhar-e-Alam और ये है The Pavilion, our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 India. Yesterday, Pakistan opening their account with a win against Netherlands and happy Pakistani fans and happy all of us. With me in the Pavilion, I'm joined by four cricketing legends, four Pakistani captains, four outstanding cricketing minds. First up, I've got the young, dynamic, the dashing Mr. Shoaib Malik. Good morning, Shoaib, and assalamu alaikum. Good morning, assalamu alaikum everyone. Yes, good. And with that, Mr. Dependable, the most successful Test captain in Pakistan's Test cricket history, Misbah. Good morning and assalamu alaikum, Misbah. Ji, wa alaikum assalam. The man who stood behind the stumps, making sure that he gets the best view in the world when the two Ws, Agha Bata, operated together. I've got Mr. Crooked Fingers, Moin Khan. Good morning and assalamu alaikum. Good morning. Please show us your hands, right? Like always. All right, wonderful. Thank you. Good to have you here. And the cricketing royalty himself, the Sultan of Swing, the undisputed king of all-rounders in the world of cricket. I've got His Excellency, Mr. Wasim Akram. Good morning, Wasim. Good morning. Assalamu alaikum everyone. मैं चाहता हूँ आपके साथ जितनी बातें करनी है हम सुबह किया करें, चूंकि बाद में आप जो है वो बहुत एक्साइटिंग हो जाते हैं हम सबके लिए. बैटरी खत्म हो जाती है यार. You know, I'm not a young kid anymore. बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाते हैं. Yeah. 9 घंटे आते बैठे 10 घंटे. Yeah, but yeah, I'll try to be more I have to say awake. I have to give you credit for this thing. ये लोगों को गालिबन मालूम नहीं है कि आज तो हम सबको मजबूरन सुबह जागना था, वरना जब हम ये 11:30 बजे अपना ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं, इररिस्पेक्टिव कि हम कितने बजे लेट शुरू करते हैं अपनी ब्रॉडकास्ट, 11:30 वाला जो टाइम है, वसीम भाई जो है वो सुबह 6-7 बजे जागे हुए होते हैं. और वो जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें हम सबको ताने मार रहे होते हैं कि शर्म करो, उठो, कोई एक्सरसाइज करो, कुछ करो, कोई हेल्दी एक्टिविटी करो. और फिर उसके बाद जो द फर्स्ट पर्सन आफ्टर वसीम भाई दैट वेक्स अप इज मोइन भाई. You know, so these are very disciplined gentlemen. बाकी रह गया साथ में आना होता है. हाँ, उन्हें साथ में आना होता है, इसलिए मैं ये कह रहा था. उन्हें पता है कि मैं मोइन को पिक करना है तो लेट ना होए बस. ये. Of course, me and Shoaib are the most hardworking since we're mostly awake till 6 a.m. And Misbah तो यार, you know, जन्नती आदमी है, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता. You want to talk about calls which we both got last night? Yes, so exciting stuff happening here in the city of Karachi yesterday. The biggest entertainment industry awards took place, the Lux Style Awards last night. Congratulations to all the winners. And yeah, we were getting calls all evening. But तो चले जाते ना पार्टी में. जी हालात देखो साडे एडे ऐसी कोई जो आप लास्ट वाले शो में होते हैं ना, अभी हम लोगों ने वो होना था. अगर मैं आपकी उम्र का आता तो मैं उधर से सीधा इधर आता. यही तो इसीलिए तो आप प्रॉपर लेजेंड हैं. This is ये होता है. बिल्कुल होता है. Let's take a look at what we have in hand today. आप लोगों के लिए आज डबल हेडर है. We've got a lot of cricket. 200 overs to be played today in the ICC World Cup. पहला मैच बांग्लादेश बामुकाबला अफगानिस्तान. This promises to be a very competitive game. धर्मशाला से ये आपके लिए 10 बजे शुरू होगा मैच और ये पहला गेम है. Then another very important game. The second one also promises a lot of potential in this game. South Africa versus Sri Lanka. This is going to start at 1:30 p.m. ये दोनों मैचेस ओवरलैप करेंगे एक दूसरे पर. So but let's talk about, हम पहली गेम के बारे में बाद में बात करेंगे. Let's start with the second game that we have, जो अभी आपको आइडेंट हमने दिखाया, श्रीलंका versus South Africa. Let's open with South Africa. Misbah, tell us about this South African squad. Other than the fact कि एक चीज़ जो बड़ी वायरल हुई पूरे सोशल मीडिया पे, वो इनके जो कप्तान हैं वो कैप्टन्स मीट पे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पे बेचारे सो रहे थे. सो आर दे एग्जॉस्टेड? डू दे हैव अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैवल स्केड्यूल, या वो रात को मेरे शोएब की तरह उनको कोई फ़ोन कॉल आई और वो इस वजह से इस तरह थे? क्या चक्कर? इट डजंट मैटर. मैच डे पे जागना चाहिए. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सो भी गए तो कोई मसला नहीं. ठीक है, आज इम्पोर्टेंट है उनके लिए. ओवरऑल आई थिंक अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, कंडीशंस डिफरेंट होंगी. जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है साउथ अफ्रीका के लिए कि जब वो वहाँ से एशिया में आते हैं तो सडनली वो उनकी टीम चेंज हो जाती है. रिगार्डलेस के आईपीएल में इनके बैट्समैन मोस्टली खेलते हैं, इनके बॉलर्स भी सारे ऑलमोस्ट की प्लेयर्स हैं आईपीएल की डिफरेंट टीमों में, बट स्टिल दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव. और स्पेशली जब एशियन टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं ऐसी पिचेस पे
तो वो जो स्पिन को आपने कैसे खेलना है, लो बाउंस खेल भी दिल्ली में रहे हैं जहाँ थोड़ा स्किडी बॉल होता है, बाउंस उस तरीके से नहीं है जैसा बाकी इंडिया की पिचेस पे है, तो ये एक चैलेंज होगा साउथ अफ्रीका के लिए। वो ओवरऑल आई थिंक कि लास्ट सीरीज़ अच्छी खेल के आए हैं और कॉन्फिडेंट होंगे। क्विंटन डिकॉक एट द टॉप, Bouma in very good form, Rassi Vanderdusen, a very good batsman, एडिन मार्क्रम, हेनरिक क्लासन, जिस किस्म का 100 किया उसने। सो ये स्क्वाड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको जी मिसबा कंटिन्यू, यू कैन टेक अस थ्रू दिस। जी बिल्कुल, रीजा हेनरिक्स अभी वो खेल नहीं रहे बट वेरी गुड रिकॉर्ड है। मार्को इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, आई मीन आईपीएल में हाईली रेट इसको करते हैं। टॉल लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर और बैटिंग भी अच्छी करता है। क्लासन ने जिस किस्म का अभी 100 किया लास्ट सीरीज़ में, विकेट कीपर बैट्समैन, आई मीन विकेट कीपिंग करते हैं ये या फिर क्विंटन करेंगे, बट ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। महाराज आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर एट द मोमेंट, टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे क्रिकेट में। एडिन मार्क्रम जब से मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू है, ही प्लेज वेरी गुड और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। डेविड मिलर एवरीबॉडी नोज, नगीदी ऑब्वियसली आईपीएल का बड़ा एक्सपीरियंस है, एंड देन फलक वो ऑलराउंडर है, नॉर्मली आजकल खेल नहीं रहे। रबादा वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर, तबेज शमसी, रसी वंदरडोसन, लेजर्ड विलियम्स। सो देखने में साउथ अफ्रीका ऑलवेज लुक्स वेरी गुड। आई मीन इनकी बैटिंग, इनकी बॉलिंग, हर चीज़, और जो स्पिन डिपार्टमेंट नॉर्मली हम समझते हैं कि थोड़ा सा उसमें ये लैक करते हैं, दे वेरी गुड स्पिनर्स। मार्क्रम तीसरा जो नॉन रेगुलर स्पिनर आप उसको कह सकते हैं, बट ही इज़ गुड अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स और बीच में बॉलिंग करते हैं। इनको जो चीज़ प्रूव करनी है कि बिगर स्टेज पे आके वर्ल्ड कप्स में जो एक इनके साथ एसोसिएट हुई ये चीज़, वर्ल्ड कप्स में या बड़े टूर्नामेंट्स में आके साउथ अफ्रीका सडनली क्या हो जाता है इनको, दे स्टिल हैव टू जस्ट कम आउट ऑफ दैट एंड प्रूव दैट टू द वर्ल्ड कि वी आर एज गुड in these tournaments as we are in bilateral series. Yeah, that's true. वो साउथ अफ्रीका के साथ एक टैग है. Both these teams, Sri Lanka and South Africa, lost their warm-up matches to this in this World Cup, Wasim. And also, let's just quickly touch up on Sri Lanka because वो जो कल मिसबा ने बात एक छेड़ी थी कि वो भी एक बड़ा डिबैकल वाला फाइनल खेलते हुए एशिया कप से आ रहे हैं. So they must be also a little scarred. I was there when this happened, Sri Lanka. It's a young side. It's because they have 3-4 big players got injured. Tikshana, I think, is not playing still, recovering from his hamstring injury जो final से पहले उसे हुई थी. Then Hasaranga got injured in LPL. Then Chamira got injured as well in LPL. So these are their main players, white ball cricket. और these guys are not there. So it's a young side, and हमने देखा एशिया कप के फाइनल में 50 पे आउट हो गए within an hour. It was just a good Premadasa pitch. I mean, I'm not taking credit away from the Indian bowlers, Siraj and all, he's got 6 for. They just bowl at the right length, but instead of just blocking and seeing off the new ball, they got panicked. And I think the most worried of something for them is the captain's form. Right. उसका 9 की एवरेज है पिछली 10 एक इनिंग्स में. So I suppose if you come at number 6 and number 7, you has to be useful at somewhere. So एक वो बहुत वरी है उनके लिए. It's a young side, and I think it's difficult to pick favorites right now, but दिल्ली में मैच हो रहा है. अब दिल्ली में 300 पिछले 10 साल से जितने ओडीआई हुए हैं 300 किसी टीम ने नहीं किया. और वहाँ स्पिनर्स की एवरेज पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट है. इट्स अबाउट जस्ट ओवर 21 पर विकेट. So they have very good spinner. वो young लड़का जो उनका है Velalage, he really had a good Asia Cup. So it's an inexperienced side, but they can fight, no doubt about Sri Lankan team. That's for sure. Yeah, that is for sure. Moin, now let's quickly ये continue करते हैं श्रीलंका के हवाले से ही बात. और जिस तरह अभी वसीम ने कहा कि यंग साइड है, पैनिक कर गए थे. इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं थी उस फाइनल के अंदर एशिया कप के. एक इस तरह की डिफीट के बाद इतना, मतलब एक तो होता है ना कि नॉर्मली आप एक फाइनल हारे हैं, बट एक इस तरह की डिफीट के बाद coming straight into the World Cup, what kind of psychological baggage are they bringing into this plus, game? Well, add to the question, Moin, और plus जब ये एशिया कप हारे हैं तो उसके बाद lot of rumors / news कि कप्तान को हटा देंगे. So वो भी एक था, उन्होंने अच्छा किया नहीं हटाया. Please. I think कप्तान को हटाने वाली तो बहुत ही गलत बात होनी थी इस टाइम पे, जिस वक्त वर्ल्ड कप. अभी एशिया कप में पाकिस्तान की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत सारी गलतियां बाबर से भी हुई थी.
तो आई थिंक उसको कंटिन्यू करना बिल्कुल सही डिसीजन था। यहाँ भी शनाका को जिस तरह कंटिन्यू किया, ठीक है, आप बैगेज ज़रूर लेके जा रहे होते साथ, माइंड में तो होता है चीज़ें, लेकिन आपको कम बैक करने के लिए थोड़ी सी अपनी फेवरेबल कंडीशंस भी चाहिए होती है। अब पहला मैच है दिल्ली में, जैसे पिच की बात हुई है, इतना अच्छा बाउंस नहीं होता यहाँ पे, तो कंडीशंस अच्छी नहीं मिलने वाली। एंड देन ओपोनेंट अगेन इट्स अ बिग टीम, लाइक जिस तरह के कॉम्बिनेशन हम भी मिसबा ने डिस्कस किए, सारे इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, तो इतना आसान नहीं होगा श्रीलंका के लिए। यहाँ पे अगर टॉस जीतते हैं और वट एवर दे वांट टू चूज, बैटिंग करें या बॉलिंग करें, तो उनको बॉलिंग करते हैं तो आउट करना होगा, रिस्ट्रिक्ट करना होगा यकीनन, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीकन बॉलिंग नो डाउट बहुत अच्छी है, इसी तरह अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो दे हैव टू गेट 300 मार्क एटलीस्ट, और जो प्रॉब्लम्स आ रही है इस वक्त के बड़े अच्छे स्पिनर लाइक असरंगा टीम में मौजूद नहीं है, देन तीक्षणा जो है वो नहीं खेल रहे हैं, अनफिट हुए हैं, ये स्क्वाड देख लेते हैं श्रीलंका का, मुश्किल होगी यहाँ पे श्रीलंका को। बट लेट्स टेक अ लुक एट द स्क्वाड ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। जी मोइन, टेक अस थ्रू द हाँ जी बिल्कुल, जैसे वसीम ने कहा रिलेटिवली काफ़ी यंग साइड है, एक्सपीरियंस इतना नहीं है वर्ल्ड कप्स में, इतनी ज़्यादा प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है इसके अंदर। इसके बावजूद एज अ फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो बेसिक एनर्जी चाहिए होती है आपको एक मोमेंटम हासिल करने के लिए, वो एज अ यंग टीम श्रीलंका के अंदर है। फील्डिंग बहुत अच्छी साइड है इनकी, बट वो एक्सपीरियंस हकीकतन नहीं है। कुशाल मेंडिस को मैं ज़रूर थोड़ा सा रेट करूँगा, जो एक ऐसे बैट्समैन है इस टीम के अंदर जो ऑल अलॉन्ग पूरी इनिंग को बिल्ड करना जानते हैं, स्कोर्स भी बड़े किए हुए, और कुशाल परेरा नो डाउट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं ऊपर से अगर इसके बल्ले पे आने शुरू हो गई, जिस तरह का ये इम्प्रोवाइजर है, तो ये किसी भी दुनिया के बेस्ट बॉलर को भी बिल्कुल। जो पिक ऑफ द बैटर्स एशिया कप में शोएब वो था ये सदीरा, या ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, वेरी गुड ऑलराउंडर। एलपीएल में दो सीजन उनके साथ खेला हूं, ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट। और निशांका जो है, ही इज बीन आल्सो इन गुड फॉर्म, स्कोर्ड लॉट ऑफ रन्स। और सिर्फ मुझे ये लगता है कि जहाँ पे मैच हो रहा है दिल्ली में, जैसे स्पिनर्स की एवरेज वसीम भाई ने बताया अराउंड 21 है पर विकेट, उसमें मुझे ये लगता है कि इनको हिट बैक करेगा महेश ज़रूर हैं स्क्वाड में, लेकिन 11 में आज अवेलेबल नहीं है, राइट। इसी तरह हसरंगा वो होते तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट बैटल बिटवीन टू गुड टीम्स। सो दूसरी जो बड़ी चीज़ है कि जहाँ थोड़ी सी टेस्टिंग कंडीशन ऊपर से आ गई हैं, थोड़ी सी बॉलिंग ऐसी आई है, वहाँ पे स्ट्रगल किया श्रीलंका ने। आप फाइनल की भी बात करें, थोड़ा सा बॉल हिला है तो फिर उनको कोई प्लान बी कोई नहीं है, वो फ्लो में खेलते हैं, उसी में अगर वो रन्स करते हैं तो देन दे आर डेंजरस। बट सडनली जब विकेट्स गिरती हैं तो वो जो एक एंकर का रोल होता है उनमें, उनकी टीम को बाइंड, जैसे हर टीम में नंबर 3 है, किसी का टॉप ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन है, कोई लाइक अ ग्लू उस इनिंग को लेके चलता है। इनकी जो बैटिंग में है वो नहीं है, तो ये लंबा स्कोर करते हैं अगर वो विकेट अच्छी है और कंडीशन ठीक है, बट जहाँ अर्ली विकेट्स गिरती है वहाँ पे कोई संभालने वाला नहीं है। हम इनके कप्तान की भी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ही इज़ अंडर प्रेशर, क्योंकि नाम वो उनके मेन 5 बॉलरों में आता है और फिर एज ए बैट्समैन खेलता है, तो बैट्समैन बड़ा मुश्किल है 7वां नंबर वहाँ पे आके इम्पैक्ट डालना, कि यू हैव टू जस्ट गो देयर एंड यू हैव टू स्कोर रन्स एंड स्कोर रन्स क्विकली। वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है कंसिस्टेंटली आप रन्स करें। एक बॉलर हो तो लेस प्रेशर है, क्योंकि बॉलिंग तो वो कर रहा है, बैटिंग में अगर वो करेगा ठीक है, नहीं भी करेगा प्रेशर नहीं है। तो ही इज़ इन काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ वो उसका रोल कि वो क्यों खेल रहा है टीम में या किस लिए, वो थोड़ा सा प्रेशर उस पर बिल्ड हुआ है। तो ही नीड्स टू परफॉर्म। बड़ा ज़बरदस्त टेम्परामेंट है उसका, पाकिस्तान में भी है, कप्तानी में, हर चीज़ में। बट आई थिंक एज अ प्लेयर कप्तान जब नहीं कर रहा था देन ही जस्ट गॉट ऑन। कैप्टन बना के रखा हुआ है उन्होंने डिस्पाइट ऑफ हिज एवरेज इन द लास्ट 10 गेम्स, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है अपने प्लेयर्स को। और मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट जो है मैं अभी भी खेलता हूँ श्रीलंका में, तो वो सबको जोड़ के रखता है। हाँ, उस पर प्रेशर ज़रूर है बिकॉज ही हैज़ टू फायर जिस नंबर पे वो आता है, लेकिन यह है कि ओवरऑल अगर देखा जाए, सिर्फ हम लीडरशिप पे अगर उसकी बात करें तो ही इज़ द राइट चॉइस। He's a good leader. Tactically, he's a good captain. So let me just quickly put this out to Moin and to Wasim both. Does leadership trump performance?
That's a very difficult question to answer, but अगर हर एक का different answer हो शायद, but my answer would be कि leader has to lead from the front. So he has to perform as well, right? He has to perform. Okay, ठीक है, एक certain period आता है आपकी ज़िंदगी में या आपके career में जहाँ performance नहीं हो पाती आपसे, but you have to come back and perform. That's the only way. There is no two. We can't just be in the playing 11 for long. Right. एक इशू है, अगर उनके पास choices होते तो वो जरूर चेंज करते, लेकिन अभी ये भी issue है कि LPL भी खेला है, Okay, so there are dynamics at play that दो we senior player जो जी. white ball अब नहीं खिलाते या खेलते भी, चंदीमाल and Angelo Matthew, वो भी नहीं है टीम में, so they need somebody who can actually guide this young side. Very talented cricketers, no doubt. Absolutely, no question about that. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, there's more about this game and the next game. And we'll talk about that. Don't go away. Keep watching A Sports and Sports and the ARY Zap app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम. आप देख रहे हैं A Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC World Cup 2023 from India. With me in the studios, I've got the four outstanding gentlemen: Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and the great Wasim Akram. हम लोग बात कर रहे थे जो दूसरा मैच आज होना है between South Africa and श्रीलंका, उसके हवाले से, और अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले जो उनके कप्तान हैं श्रीलंका के, उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे. Now the last 20 ODIs that he has played, Wasim, he's only scored 148 runs at a 9.86 वाली जो एवरेज है. Yes. But versus that, उधर क्लासन की साउथ अफ्रीका वाली साइड पे जो है कहानी कुछ और है. उन्होंने अभी एक बड़ी जबरदस्त 174 रन्स की इनिंग्स खेली ऑफ 83 बॉल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जस्ट रिसेंटली. उसी की बात कर रहा था, और ऐसे ऐसे छक्के मारे उन्होंने कि वो वसीम भाई भी उसी की बात कर रहे हैं. हमारे अगेंस्ट जब हम गए थे तो ये सीरीज़ खेल रहे थे तो उस वक्त बड़े कम मैचेस थे इनके, बट उस वक्त भी एवरेज ऑलमोस्ट 50 के पास थी. और उस टाइम ऐसे ही होता था कि कभी कभी खेलते थे कोई सीरीज़, एक दो मैच खेल लिए और उसके बाद मेन प्लेयर जब आते थे तो चांस नहीं मिलता था. तो इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, स्पेशली उन कंडीशंस में. पाकिस्तान में भी आके उन्होंने रन किए थे T20 मैच में एक में. ही इज़ ऑल्सो गुड अगेंस्ट स्पिन. सो ओवरऑल साउथ अफ्रीका में वही कह रहा हूँ कि इनकी टीम लुक्स वेरी गुड. जब आप पेपर पे देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये टीम क्यों नहीं आगे जाती सेमीज़ में या फाइनल में, क्यों नहीं पहुँचती. द ओनली थिंग मेंटल ब्लॉकेज, वो कैसे ओवरकम करना है. ओवर द ईयर्स नहीं कर सके, बट लेट्स सी, एवरीबॉडी इज़ वेटिंग अनदर वर्ल्ड कप, मे बी दिस टाइम. मिसबा जो बात कर रहा है इसकी, इस साल जो ये खेला है ODIs, स्पिन के खिलाफ इसकी एवरेज इज अबाउट 41, right, and his strike rate is 170, and he is the best player from South Africa to tackle spin actually. So इसका क्रीज पे रहना, नंबर 5-6 जिस नंबर पे बैटिंग करता है, स्पेशली अगेंस्ट श्रीलंका जो उनके स्पिनर हैं, दिल्ली की विकेट उन्हें सूट भी करेगी. सो he'll be the main man for South Africa in batting. और लगता है साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करेगा तो 300 आज दिखेगा. बट ये इस पिच पे भी आपको लगता है ये शो, बिकॉज दिस इज न्यू दिल्ली, इट टेंड्स टू फेवर द स्पिनर्स, द बॉल डजंट रियली फ्लाई ऑफ द बैट. यू थिंक ही विल बी एबल टू, या मेरी गट फीलिंग कह रही है राइट कि आज 300 से ऊपर होगा अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगा. Right. That could be a well. Will be. We have to see, watch and see how that goes out. श्रीलंका को, इस साउथ अफ्रीकन टीम को रोकने के लिए क्या करना होगा आज मोइन? आई थिंक जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, एक तो उनके मेन स्पिनर्स नहीं है मौजूद, अनफिट हुए में, बट जो रिमेनिंग स्ट्रेंथ है उनकी, आई थिंक दे हैव गॉट टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट इन बॉलिंग. विद इन द स्टम्प्स करनी पड़ेगी, आपको खुद चांस नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पर. आपको थोड़ा सा रन को रोकने की कोशिश करनी है और विद इन द स्टम्प्स अगर गेंद करें, बिकॉज के लो बाउंस पिच अगर हुआ, जिस तरह की प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं इस पिच के बारे में, तो आप ऐसी पिचेस के ऊपर हमेशा कोशिश करते हैं विद इन द स्टम्प्स गेंद करें ताकि ज़्यादा आपको चांस मिले. अगर विकेट से जितनी भी विड्थ ज़्यादा मिलेगी, साउथ अफ्रीकन स्ट्रोक मेकर्स हैं तो मुश्किल होगा उनको आउट करना, और आप रन देते चले जाएंगे. तो जिस तरह मलिक ने कहा कि वो 300 प्लस मुझे नज़र आ रहे हैं अगर पहले बैटिंग करते हैं. पिच ज़रा सी भी अच्छी हुई और फेवरेबल कंडीशन हुई साउथ अफ्रीका के लिए, लाइक के उनको बॉलें ऐसी मिली जिसमें वे तो और वो स्ट्रोक प्ले कर सके, तो यकीनन कर सकते हैं. अदरवाइज दे गॉट टू बी विद इन द स्टंप. And I think हेड टू हेड काउंट देख लेते हैं एक सेकंड वसीम. ये हेड टू हेड काउंट बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आ रहा है. दिस इज द हेड टू हेड काउंट नाउ. दिस इज हाउ दे हैव बीन विद ईच अदर. लुक एट दैट.
South Africa 45, Sri Lanka. That's the overall ODIs, Yeah, right? And in the overall. World Cup, Cup's 4-1. 4-1. They're definitely favorites today, no doubt about it. And they also, South Africa will miss their main bowler, जो कि squad में नहीं है injury की वजह से, Nokia नहीं है, yeah, I he's not in the mean, squad. he's 145, 147 मिसबा वही हमें explain कर रहा था, शोएब भी कि 140, 135 to 140 तक ओके टैकल हो जाता है बॉलर इवन स्लो विकेटों पे, पर जब 145 से ऊपर जाती है पेस ना, जैसे कल हमें हारिस रऊफ ने बताया कि एवरी बैट्समैन लेट हो रहा था यू नो फ्लैट डेक पे भी, तो दे डेफिनेटली मिस हिम, बट दे हैव अ गुड बॉलिंग अटैक। नगीदी है, रबादा है, और वो लेफ्ट आर्म यानसन के जेंसन या हांसन जो भी प्रोनाउंस करेंगे, Two spinner है quality quality spinners spinners. and Akram even he is good. ऑफ ब्रेक ऑफ ब्रेक करता है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, यानी कहीं पे भी उनको ज़रूरत पड़ती है रेगुलरली बॉलिंग कर रहा है, 5-6 ओवर, बल्कि वहाँ साउथ अफ्रीका में जब हम गए हैं तो वहाँ तो वो 10-10 ओवर भी कर रहा था। So he's confident. टीम में 2-3 लेफ्टीज हैं in the first 6. So Akram will play a role there. Yeah. Win the toss and do what in New Delhi? I can't say anything without looking at the pitch. Right. But the way जो stats बता रहे हैं हमें वही बता रहे हैं कि it's one of those pitches where you win the toss, you bat, and then obviously defend. I don't know about ratio क्या है, but अगर मैं पिच पे अगर स्पिनर है तो इसका मतलब है कि सेकंड टाइम पे ज़्यादा टर्न करेगा, वेन्यू unless until स्टैट्स अगर हमारे पास है, वेन्यू स्टैट्स अगर हैं हमारे पास तो हम आपको but unless until there's a due factor we don't फैक्टर know. आई थिंक दिल्ली में मुझे लगता है होगा आजकल के वेदर में, क्योंकि लाहौर में ड्यू होती है आजकल, और अगर लाहौर में है तो नॉर्मली वहाँ पे भी होती है। वहाँ पे होगी, एग्जैक्टली होगी, सो वो भी फैक्टर इन्होंने फिर अपने सोचना होगा दोनों टीमों को कि टॉस जीत के करना क्या है। यूजली आप एक दिन पहले प्रैक्टिस इनकी शाम को होती है तो पता लग जाता है कि देयर इज़ अ ड्यू और नॉट ड्यू कम, आई थिंक आप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाहौर या उस साइड पे आफ्टर सनसेट ही आती है, अक्टूबर 7:30 के बाद आती है। ये मैच बड़े है इवेंट्स डे में नाइट स्प्रे करते हैं, और या उस स्प्रे स्प्रे भी से करेंगे। क्या होता है कि जो ड्यू है वो सरफेस या ग्राउंड के अंदर चला जाता है, वो ऊपर घास पे नहीं रहता, तो उस तरह नहीं बॉल गीला होता है जैसे अगर पहले होता था। पहले होता था। But Yeah, that's you don't not a see the day game, towels that's come a out. day night game. That is a day night. The second game, so that's a day night. Yeah, पहली वाली is a पहली full day game. धर्मशाला वाली, yeah. and धर्मशाला में होनी भी डे वाली गेम चाहिए because you know the Because weather it's up does- north, it's cold, it's Yeah. beautiful. Yeah, it is. Yeah. We're going to talk about that game, but right now we're going to take another break on the Pavilion. Keep watching A Sports and Sports and the Airwise app. When we come back, we're going to talk about the other game, another very, very important game. It's Bangladesh clashing with Afghanistan. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, and this is A Sports and Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC World Cup 2023 from India. It's a double header today. दो बड़े मैचेस हैं आज। जब से कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जो दूसरा मैच आज 1:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे शुरू होगा, जो कि साउथ अफ्रीका बामुकाबला श्रीलंका है न्यू दिल्ली से आपके लिए बराह रास्त आएगा। अब हम गुफ्तगू शुरू करते हैं अपने पहले मैच की, जो आज 10 बजे अब से कुछ देर बाद 1 घंटे के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान। ये भी बड़ा ज़बरदस्त, इट प्रॉमिसेस टू बी अ रियली गुड गेम ऑफ क्रिकेट। धर्मशाला से ये मैच आपके लिए बराह रास्त हम लोग जो है वो पेश करेंगे। मेरे साथ पवेलियन में मौजूद हमारे 4 सुपरस्टार्स आर आउटस्टैंडिंग लेजेंड्स हु रिप्रेजेंटेड द गेम ऑफ क्रिकेट एंड आवर कंट्री विद ग्रेट प्राइड। आई हैव गॉट शोएब मलिक, Misbah, Moin Khan, and Wasim Akram. Let me start off this with Wasim, with you. Yeah. Afghanistan, Bangladesh. दो टीमें, दो बहुत ही ज़बरदस्त टीमें अब तो कह सकते हैं, because they have the potential to strike anyone, anywhere. Very exciting teams, Yep. both of them are. और पार पे है अगर इनको ओवरऑल रैकेट देखा जाए तो नाउ बांग्लादेश जीता है 6, अफगानिस्तान वर्ल्ड डे में से ODI वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले हैं और दोनों बांग्लादेश ने जीते हैं। अगर रैकेट से देखा जाए, स्टैट से देखा जाए तो बांग्लादेश गोइंग इनटू दिस गेम डेफिनेटली फेवरेट्स, बट कमिंग बैक टू अफगानिस्तान, उनकी रीसेंट फॉर्म इज़ ओके, ऑल्दो पाकिस्तान से 3-0 भी हारे हैं, ओके तो नहीं कहूँगा, 3-0 हारे हैं, एंड देन जो ये मिस कैलकुलेशन से जो एशिया कप में ये मैच हारे हैं, लुक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई उसमें, कंप्लेन भी की, हमें बताया नहीं। अब आपको एक बुक मिल जाती है, लॉ बुक, रूल बुक / जो भी टूर्नामेंट से पहले मिलती है, वो आपकी मैनेजमेंट का काम है पढ़ना। और मैं भी बड़ी क्रिकेट के साथ वाबस्ता हूँ, अभी भी टीमों के साथ लीग्स में। जब मैं एज अ मेंटोर या एज अ कोच बाहर बैठा होता हूँ, ये ब्रेक में सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं अंपायर से अपना 12th मैन या एक्स्ट्रा भिजवाऊँ और पूछूँ कि डकवर्थ लुईस का मुझे कॉपी दे
और सिनारियोज क्या हैं, क्या scenarios? सारे सिनारियोज आप फोर्थ अंपायर से लें ताकि वो रेफरी से टैली करके आपको बता सके बिफोर द इनिंग स्टार्ट्स, एंड दैट वाज अ बिग मिसकैलकुलेशन. देयर इज नो पॉइंट ब्लेमिंग एनीवन देन themselves and their management. But again, coming back to their squad, can we talk about the squad? Yeah, we'll bring out the squad. सबसे पहले हम आपको मेरा ख्याल है कौन सा स्क्वाड दिखाएं आपकी स्क्रीन के और ऊपर. इनके दो जो टॉप के बैटर हैं वो बड़ी जबरदस्त अफगानिस्तान का स्क्वाड लेकर आते हैं सबसे पहले. Let's bring in the Afghanistan squad because it's very important to see where Afghanistan are. They are a team to watch out for. उन्होंने बड़े scares दिए हैं पाकिस्तान को over the years. Afghanistan. This is the squad. Shoaib Malik, why don't you take us through this? कैप्टन उनके जो हैं शाहिद, फिर गुरबाज जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाता है क्योंकि वो ओपनर हैं और उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है. जिस दिन वो 15-20 ओवर्स खेल जाएं दे आर ऑलवेज इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन. ज़दरान, रियाज हसन, रहमत शाह, नजीबुल्लाह ज़दरान, ये सारे जो इनके प्लेयर्स हैं ये काफ़ी टाइम से सेम कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं. नबी उनके जो है बड़े पुराने क्रिकेटर हैं और बड़ी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली. फिर उसके बाद ये जो उमर जई हैं ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं. लास्ट ईयर आई वाज वी वर इन द सेम टीम इन बांग्लादेश. और राशिद खान ऑफ कोर्स हम सब उनको जानते हैं, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, और फजल हक फारूकी, अब्दुर्रहमान, नबीनुल हक. तो ओवरऑल इनके पास अगर इनकी बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो बहुत अच्छा है. हैवीली डिपेंडेंट ऑन स्पिनिंग, स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन अब इनके पास पेसर्स भी अच्छे आ गए हैं और उनकी वेरिएशन बहुत अच्छी है. सिर्फ जो थोड़ा सा लैग करते हैं वो मुझे ये लगता है कि बैटिंग में वो इतने रन्स नहीं बना पाते कि उनके जो बॉलर्स हैं वो डिफेंड कर सकें, या अगर वो बाद में चेस कर रहे हैं तो वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे दे हैव बीन स्ट्रगलिंग. सो इस डिपार्टमेंट को अगर वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें और जो उनके बैटर्स रन्स बनाते हैं वो कंसिस्टेंटली रन्स बनाना शुरू कर दें, सो दे कैन अपसेट एनी बिग टीम on a given day. They can, but they also have a problem in general batting की. आप जैसे बात कर रहे थे कि इनकी डॉट बॉल जो रेशियो है वनडे क्रिकेट में वो बहुत ज़्यादा है. स्ट्राइक रोटेशन इज अ मस्ट, वी ऑल नो दैट, बट इनकी जो है इट्स अबाउट 56, जस्ट ओवर 56% इनकी स्ट्राइक रेट है. तो इसका मतलब है अगर ये 100 गेंदे खेलते हैं तो उसमें 56 ये डॉट खेलते हैं. तो वही डॉट को इन्होंने कोशिश ये करनी चाहिए इनके एक्सपीरियंस बैटर्स को कि उसको सिंगल्स में क्रॉस करें, स्पेशली ये 50 ओवर क्रिकेट में. They are heavily dependent on रहमानुल्लाह गुरबाज एंड इब्राहिम ज़ादरान. बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है और मुझे लगता है कि ये दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो किसी भी अच्छी टीम में खेल सकते हैं. ये मिसबा जरा देखेंगे वर्स्ट डॉट बॉल एवरेजेस ओडीआईज के अंदर वर्ल्ड कप 2019 से जो है अफगानिस्तान इज राइट ऑन टॉप. अफगानिस्तान का मेरा ख्याल है जो इनकी नेचर है वो T20 वाली नेचर है ना. जिम्बाब्वे, बट लुक देयर इज बांग्लादेश देयर एज वेल. बिल्कुल जो बेसिक नेचर है इनकी T20 की नेचर से खेलते हैं, यू नो, या तो डॉट खेलनी है या बाउंड्री के लिए जाना है. दे डोंट कन्वर्ट डॉट बॉल्स इनटू सिंगल्स, यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और यही बात अभी मलिक ने की है. ये इसी वजह से जो 50 ओवर्स में ना थोड़े से वनरेबल हैं कि पता होता है कि लंबी इनिंग्स नहीं. यहाँ पे एक तो मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर स्पेशली इनको अगर ये पहले फील्ड करते हैं, यहाँ पे टॉस जीतते हैं और फील्ड करते हैं अर्ली ऑन, थोड़ा सा यकीनन कंडीशंस ऐसी होंगी जहाँ पे फास्ट बॉलर जिस तरह के हैं इनके उसको हेल्प करेगी, गेंद मूव करेगी, और रिस्ट्रिक्ट करें कम से कम टोटल पे तो इजी होगा इनके लिए मैच. अदरवाइज अगर ये जाते हैं पहले बैटिंग कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैच बांग्लादेश शायद ले जाएगा इनसे. But you guys think कि weather will affect us? It will be a cold weather. It's up north. धर्मशाला में थोड़ा सा कोल्ड वेदर होगा तो वेन्यू के ऊपर बात करते हैं, but we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, there's more about this game. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC World Cup with me, Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and the great Wasim Akram. हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे जो मैच अब पहला आज आप देखेंगे धर्मशाला से अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश. अफगानिस्तान की टीम के बारे में बात की. ये बांग्लादेश का स्क्वाड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. वसीम, टेक अस थ्रू दिस स्क्वाड प्लीज. Yeah, it's a very talented squad. स्पेशली मुझे इनकी फास्ट बॉलिंग ने बड़ा इम्प्रेस किया ओवर द इयर्स. लिटन दास, तंजीद हसन,
Najmul Shanto, and then of course Shakib, one of the number one all-rounder in world cricket in ODI. Mushfiqur Rahim, wicket-keeper, very experienced batter too. And then of course then the youngsters come in, and I think इनकी जो bowling है basically fast bowling, Tashkin, Hassan Mahmood, Shoriful Islam, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और इनका जो मुस्तफिजुर भी है लेफ्ट आर्मर, वो उसका इन स्विंग आ गया है, सो वो भी थोड़ा बेहतर हो गया है। वो अभी 11 में जगह नहीं बना पा रहा। I know, हसन इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इनका जो अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी वो कप्तान की और तमीम इकबाल की। पहले तमीम ने रिटायरमेंट ली, फिर हेड ऑफ स्टेट ने बुलाया, उन्होंने मनाया उसको, वापस आया। फिर ये वर्ल्ड कप से 4-5 दिन 6 दिन पहले आई वाज रीडिंग कि दे मेट अगेन एट द BCB चेयरमैन्स प्लेस एंड ही सेड कि मैं 5 मैच खेलूंगा। अब खबर में सच्चाई है कि नहीं है, ये हमें नहीं पता, बट ये न्यूज़ में मैंने पढ़ा है। वो उसने कहा है कि मैं 4 से 5 मैच खेलूंगा वर्ल्ड कप में। शाकिर ने कहा ये क्या बात हुई, जो पढ़ा है कि आप तो वर्ल्ड कप तो पूरा खेलते हैं ना, 4 मैच तो नहीं खेल सकते। बट ये जो वसीम है, इनकी बॉलिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं, जो पेस जनरेट करनी शुरू कर दी इनके। डोनाल्ड के आने से कोई बड़ा फर्क पड़ा होगा, माइंडसेट में फर्क पड़ा है। पहले इस तरह की मैंने कभी बॉलिंग इतनी पेस भी नहीं देखी। तीनों लड़के जो हैं, चारों इनफैक्ट तशकिन, हसन महमूद और शरीफुल इस्लाम, और इनकी जो एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैट है इन तीनों फास्ट बॉलर्स की वजह से, इनकी जो फास्ट बॉलिंग एवरेज है ODI में वो है सेकंड बेस्ट 24.10, so second best in ODI cricket, in world cricket, so that's incredible. India number 1 पे आता है, पाकिस्तान 3 पे और बांग्लादेश 2 पे, so that's a very good sign. पर इनकी बैटिंग का ज़रा प्रॉब्लम होता है, वो सारा कुछ रिलाय करते हैं शाकिब पे। शाकिब और शांतो लिटन दास also improved a lot. जी, शांतो इनका बड़ा ज़बरदस्त बैटर है, यंगस्टर है, लेफ्टी है, और एंड ही इज बीन इन ग्रेट फॉर्म। So लिटन दास is in very good nick too. जी, लिटन दास थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है और फ्रस्ट्रेटेड मैंने उसे देखा एक मैच में, तो उसने अपना एक बैट भी तोड़ा आउट होके वो आया। इनको गुस्सा बड़ा आता है। ये इसमें क्या, ये क्या वैसे, I mean you've all played with Bangladesh, why is that? I think when we played in Bangladesh we had very beautiful people. I mean अभी भी लोग तो बहुत ज़बरदस्त हैं, young लड़के I suppose heat of the moment, hot-blooded, but generally it's a beautiful place. ट्रैफिक की वजह से, ढाका की ट्रैफिक की वजह से, I know Dhaka traffic is quite a handful. गुस्सा बहुत है उनमें, लेकिन रियलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो भी बहुत शॉर्ट है। फौरन दे रियलाइज, दैट इज वेरी गुड, और रियलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपने ट्रैफिक की बात की, ये अक्सर ऐसे होता है कि होटल आपको सामने नजर आ रहा है लेकिन आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो हम उतर के वॉक करना शुरू I suppose it's like any other big city in the world. अगर आप कराची में फंस जाए, सनरगाह वाला जो होटल, शुररगाह, I remember वो कौन सा एशिया कप चल रहा था वहाँ पर, long time ago. You were the captain. I ended up and you told me to eat those tiger prawns, those big prawns that look like lobsters. Freshwater prawns. I remember that. It was a very good. मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुना। नहीं, रुक जाए एक सेकंड, उधर पिच रिपोर्ट आ गई धर्मशाला से, जरा वो देख लेते हैं, फिर स्टोरी सुनते हैं। Let's go over to check out the pitch report. Stunning Dharamshala, the venue for our first day game in the tournament, and the weather is perfect, mid-20s, hardly a cloud in the sky. The pitch is not quite central. If we look at the playing dimensions here today, if you're bowling from the river end, it is a slightly shorter hit leg side, 61 metres leg side, 68 metres offside, and 75 metres down the ground. So it's one of the smaller venues in this World Cup. It's one of the smaller venues in India. It is the first time I've been here. A man who's been here a few times for IPL cricket, Matthew Hayden. What do you make of this pitch? What do you make of it generally when you've been here before? Yeah, g'day Nasser, g'day everyone. Look, there's only been 4 games that have been played here in ODI cricket, but generally speaking what we see here is bounce. So I want to discuss that just briefly because we've got a very hard surface and we've got quite a lot of grass on it as well. Since 2019, what you'll see here is that you've got some elevated bounce. You've got at least one ball compared to the other venues, Nasser, right across India. Now, part of the reason why I think is this is India's wow factor ground, so it doesn't get a lot of traffic. That enables these groundsmen to prepare lovely surfaces, really good smattering of grass, and of course, you know what that does for batsmen is it comes on.
What about the outfield? We walked across it. They've had a few issues of it. What do you make of the outfield? Yeah, look, it's a change of season here, isn't it? Here we are. It's beautiful, isn't it? It's a remarkable place up here in Dharamshala. But in the change of season, what happens is the blue cooch tends to die off before the ryegrass comes into play. So we're in this kind of die-off phase. So by the time India play here, coming towards the sort of back end of the tournament, this will be as magnificent as what we've seen it in any other previous match. So it will affect runouts. You know, they're both these sides. They love to hit the boundaries. Maybe it'll hit those sandy patches and it'll just hold up. So great views, decent pitch. Be careful in the outfield. Be careful in the outfield. What do you think about that pitch, Misbah? What do you think about that ground right? I mean, it's a beautiful place. Wise, but नॉर्मली जो मैचेस मैंने भी देखे हैं यहाँ पे बड़े कम मैचेस हुए फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है जिस तरह वो बता रहे हैं कि बाउंस नॉर्मली अगर बाकी वेन्यूज से कंपेयर करें तो ज़्यादा है तो ये चैलेंज होगा अफगानिस्तान के लिए ऑब्वियसली क्योंकि बांग्लादेश के जो बॉलर हैं वो एक तो सारे तीनों के तीनों लंबे हैं एक्स्ट्रा बाउंस वैसे ही उनको मिलता है तस्कीन जिस किस्म की फॉर्म में है पिछले ऑलमोस्ट आप T20 वर्ल्ड कप में भी देखें सीम भी होता है बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अफगानिस्तान ये ज़रा क्लोजर लुक पिच की मोइन जिस तरह बताया कि बाउंस ज़्यादा होगा और नज़र भी आ रहा है ऑन टॉप ग्रास का भी एक लेयर नज़र आ रही है हमें यू नो इन्हों अपना हाथ नज़र नहीं आना उन्होंने पिच नहीं करूँ मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस ग्राउंड पे खेला हूँ जी बताएं शोएब तो यहाँ पे जैसे मिसबा भाई ने कहा या मोइन भाई कह रहे हैं कि बाउंस जरूर होता है लेकिन शॉट्स भी बड़े मजे के लगते हैं इस ग्राउंड पे It's a fresh kind of pitch. He said by the time India will play back off in the tournament, it'll be a belter. But I think नया बॉल थोड़ा बहुत तो हिलेगा यहाँ पे. यहाँ पे नया मैचेस बॉल कम होते हैं तो फ्रेश होती है पिच ऑब्वियसली देन फास्ट बॉलर्स को थोड़ी पता है नहीं जी जी तय कर ले आपस में कि किसने क्या बताना है मुझे टॉस करवा देते इधर ही तुलवारा पड़ना मैंने ये खेला मैं इसका एक्सपीरियंस है भाई इस ग्राउंड अच्छा एक काम करते हैं थोड़ा मुझे पता थोड़ा सा नहीं तुमने स्टोरी बतानी है मुझे अभी we're going to take another break right here on the Pavilion because I think we definitely need a break something is going on here that I can't figure out don't go away keep watching the Pavilion welcome back to the Pavilion मैं हूं Fakhar-e-Alam आप देख रहे हैं Sports and Sports on the Airwise app coverage of the ICC Men's World Cup 2023 and Dharamshala that's where we're going for the first game अब से कुछ देर पहले हमने आपको pitch report दिखाई and we're going to go into the toss very soon after that pitch report Wasim what do you think I think I mean win the toss and bowl first It's difficult to कि pitch पे moisture है कि नहीं है उन्होंने इतना explain नहीं किया तो है more or less दोनों ने you know great commentators Nasir Hussain and Matthew Hayden good friends but अभी तक जो last ODI यहाँ पे 6 साल पहले हुआ था but जो वैसे 50 ओवर गेम हुए हैं लोकल या डोमेस्टिक उसमें से 4 में से 3 जो जीती है टीम बैटिंग सेकंड पे जीती है अब वो डे नाइट थे दैट आई डोंट नो दिस इज अ डे गेम So I suppose win the toss that depends on your how much moisture is in the pitch and ताकि नया गेंद से फ़ायदा उठा सकें आप बाकी अगर थोड़ा सा मॉइस्चर है तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए कोल्ड वेदर एज वेल बिल्कुल अगर देखा जाए तो पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए जो भी टीम टॉस जीते लेकिन जो अफगानिस्तान है वो लीथल हो जाते हैं जब वो बैट पहले करते हैं क्योंकि उनके जो स्पिनर्स हैं हेवीली लोडेड विद लॉट ऑफ स्पिनर्स तो वो अच्छा हो जाता है लेकिन मुझे ये लगता है कि फ्रेश पिच है पहला मैच हो रहा है तो टॉस जीत के बॉलिंग ही करनी चाहिए वो इन बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स जिनके बारे में अभी इतनी बात कर रहे थे वसीम भी मिसबा भी इस पिच पे they'd like to go first wouldn't they would like to really charge in first to that even if they go first अफगानिस्तान अगर मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड बैटिंग करता है तो उनके लिए इजी हो सकता है मैच अदरवाइज जिस तरह के बॉलर्स बांग्लादेश के लिए बॉलिंग कर रहे हैं तस्कीन या शरफुल आई थिंक बहुत ही इन कंडीशंस में तो बहुत ही अनप्लेबल होंगे मुझे ऐसा लगता है बिकॉज के वो सीम बड़ी अच्छी ला के मार रहे हैं यू नो एयर में भी स्विंग मिल रहा है उनको पिच से भी ऑफ कोर्स जितनी हमें नजर आ रही है थोड़ी बहुत ग्रास we take you back to Dharamshala where the captains are out for the toss for the flip Beautiful day, beautiful cricket ground. The captain's waiting. Our opera representative has given Shakib the coin. Give it a spin if you would. Heads is the call from Hashmatullah Shahidi. It's a tail. Bangladesh have won the toss. Shakib, what are you going to do and why? Well, we'll field first. Generally, it's a ground where team chases well. Probably there will be some help for the fast bowlers early on, so we'd like to capitalize on that. Your 5th World Cup. Are you as excited as you were for your first?
Well, yes, I would say. Yes, it is exciting, a proud moment, to be able to represent your country for the 5th time in the World Cup. So very happy. We prepared really well. Hopefully we'll have a very good game. You've got a few players who are playing their first World Cup. What words of advice have you given to them? Nothing much, here you can only enjoy and be positive and, whatever the skill you have, just, put it all together and perform well for the team. You don't need to think too much because at World Cup what happens, normally teams, thinks too much, doesn't do well. So we want to be as fresh as possible. We want to enjoy this tournament and hopefully we'll have a good tournament. Only once have Bangladesh got through to the knockout stages of the World Cup. Are you confident you can do it again? Well, we have the team to do it. It's just now we have to perform well on the ground. Let's start one game at a time. If we have a good game today, we can take it from here. Good luck today. Thank you. Shahidi, start of a great adventure for you. How excited are you? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yes, we are excited about it because it's in India, this World Cup, so we will be enjoying and excited about it. Just one win in World Cups for Afghanistan against Scotland in 2015. Are you confident you can add to that number? Yes, this time I'm more confident because the team is very good and well prepared for this event, and we have talented guys in the team, so I'm more confident that we will do good in this World Cup. Great and dangerous spin options. Will you get enough runs to help your spinners defend a total? Yeah, that's what we were looking for also. Like we need to give more runs to them and put them under pressure while chasing, so that will be our goal. And your players have got lots of experience in Indian conditions, in franchise cricket and international cricket. How much of an advantage is that for you? Yeah, this advantage is with us because a lot of boys played in IPL, and also India was our home ground. We had home grounds here, so that advantage is with everyone who didn't play IPL also. So we will try to take that advantage with us throughout the tournament. Have a fantastic tournament. Good luck today. Thank you very much. So Bangladesh have won the toss today. They'll bowl first. Well, there was the flip brought to you by Samsung. Now it's time to take a look at the expert predictions brought to you by Palmolive Natural. Right, Janab, expert predictions. Let's start off with you, Misbah. What do you think? Pehle to see. Pehle to see. Tu das. I think bowling first, Bangladesh. Bangladesh. Wasim? I think I like favorites for me definitely is Bangladesh. Okay, Moin? Job situation bani after winning the toss and electing to field first. I think Bangladesh will win. And Shoaib? Afghanistan. Afghanistan. I know तू पुट्ठी गल करनी सी. तू करनी नहीं वो भी अपनी strength पे. I know that you want 200 plus कर लें किस तरह तो फंसा सकते हैं उनके spinners. Yeah, I know where you're coming कर from. रहा जी पुट्ठी गल. अच्छा, really? ना percentage निकाल ले. Hello, really. And those were your expert predictions brought to you by Palmolive Natural. और इसके साथ ही आपको लेकर चलते हैं to player to watch out for brought to you by Ufone. Right, Shoaib, let me ask you, who do you think? Shanto? Shanto from Bangladesh. Shanto from Bangladesh. Moin, आपके लिए player to watch out for? Mehdi Hasan. Mehdi Hasan from Bangladesh. Wasim, आपके लिए? From Bangladesh to each side. Any side. Any side. The player to watch out for in today's contest. बताओ तो ये मैं सोच रहा हूँ. जिसका नाम ले वो टीम में ही ना हो. Yeah, I was also going to go for Tashkent. Is it Tashkent or Tashkent? Taskin. And for you, Taskin. Taskin as well? He has really impressed me in last year or so. नए बॉल से और even T20 फॉर्मेट भी भाग के और जोर लगा के बॉलिंग करता है और ऊपर से इसके लगती है रिस्ट आके. So yeah, he has improved a lot. All right, and that was a player to watch out for, brought to you by Ufone. जब इतना सारा काम कर रहे हो तो फिर हमें ब्रेक की तो जरूरत पड़ती है. So it's time for a break on the Pavilion. Don't go away. When we come back, we get closer to the action. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. With me in the Pavilion, I've got four of the greats. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and Wasim Akram. News out of Dharamshala is that Bangladesh have won the toss and have elected to bowl first, putting in Afghanistan into bat. But let's take a look at the playing 11s as they've come out to us. And this is the first one. This is team Bangladesh. ये आपके सामने, sorry, Afghanistan. All right, let's start with Afghanistan. Yes, take us through Misbah.
अब तो आगे निकल गए। चलें अब तो निकल गए, तो ये आपकी प्लेइंग 11 आ गई है सारी की सारी। नवीन, फजल, ये इनका गुरबाज, कंप्लीट इब्राहिम। स्क्वाड है। गुरबाज, इब्राहिम, अगर इन पहले 3 बैटर्स में से एक भी कोई लंबे रन्स बनाता है, दे आर ऑलवेज इन द गेम। बाकी बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं और बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, सिर्फ बैटिंग थोड़ा सा इनका एक कंसर्न है, बट ओवरऑल इट्स अ गुड स्क्वाड। All right, let's take a look at Team Bangladesh now. The playing 11 from Bangladesh. आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, ये आगे जनाब। Leighton Das, Tanzeed, Shanto, they are in good form. Then Miraz, Shakib. Shakib, Mushfiq. Corridor is a very good Very player. good player. ये भी LPL खेल रहा था हमारी टीम में, he's a very good player. What does he do? He bats और and he bats up the order, but यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं उसे मिडिल ऑर्डर में खिलाने की, क्योंकि heavily जो है वो Mahmudullah is not in this. He's in the No, no, squad, he's but not. he's not in playing 11. बट He's मजा in आएगा the playing. He's शुरू in में the बांग्लादेशी playing बॉलिंग देखने में मजा आएगा ये international प्लेइंग 11 पे है में। महमूदुल्लाह। He's in playing 11. Who? Mahmudullah. महमूदुल्लाह। Mahmudullah. महमूदुल्लाह Mahmudullah. Mahmudullah. Yes. Yeah. Not Muhammadullah. Yeah, he's a very good player. Yeah, Very but- good player, very yeah. experienced player. So middle order में शायद बांग्लादेश को इसकी जरूरत पड़े, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़े। It's going to be वो एक स्टोरी आप सुनाना चाह रहे थे शोएब, जो कि हमने आपको उस वक्त रोक दिया था क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाने के लिए कह दिया था, तो जल्दी से आप शेयर करते हैं वो स्टोरी। वो ट्रैफिक के बारे में स्टोरी, बांग्लादेश की ट्रैफिक, आपका होटल सामने नजर आता है उसमें। A lot of people think कि मैं स्पिन को क्यों इतना अच्छा खेलता हूँ, क्योंकि मैंने स्पिन बड़े पिंडों में जाके खेली है। अच्छा। तो मैं बांग्लादेश में मैंने बहुत क्रिकेट खेली है 50 ओवर, और वो ये होता था कि हमारे मैचेस जो हैं वो राजशाही, जो ढाका से बहुत दूर दूर जगह हैं वहाँ पे होते थे, तो उस वक्त हाईवेज नहीं बने हुए थे, तो मैं रात में जो है वो ड्राइवर के साथ निकलता था। अगर जाना है ढाका से तो रात को कोई 1 बजे 1:30 बजे 10 घंटे की ड्राइव, 12 घंटे की ड्राइव, तो मैं Which पीछे year was that, Shavi? मैं वसीम भाई ये बात होगी अर्ली 2000 की। Okay. तो मैं जाता था पीछे, मैं सो जाता था, तकिया रखता था, और वो ड्राइवर जो है उसको सारा दिन सुलाना, रात को उसको पता होता था गाड़ी चला के जाना है, तो पीछे वो मैं जो मतलब होता ज़्यादा रास्ता नहीं था, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर मैक्स 500 किलोमीटर, बट वो हाईवेज नहीं थे, एक सिंगल रोड होता था, तो जाते थे और सीधा ग्राउंड में वहाँ जाके मुंह धोना, दांत दूंत साफ करने, सीधा मैच। तो ट्रैफिक का ये हाल था। अब तो खैर हाईवेज बन गए हुए हैं, लेकिन 10-12 घंटे। और फनी स्टोरी जो ये है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैं कट मारते हुए क्योंकि मुश्किल पिचेज होती थी, तो मैंने 3 स्टंप्स भी बल्ले से गिराई हैं। ये होता है सारी रात जो गड्डी पे आओ तो फिर यही होना सी। So I played a bit of cricket in Bangladesh in '95, I think, for Abhani club. Club cricket is still very big, too big. There are 3-4 clubs. 2 famous one are in Calcutta as well. I think Abhani and Mohammedan. And मैं पहला मैच खेला at I think उनका जो main stadium है बांग्लादेश में, नहीं मीरपुर सिटी में में है, एक और इनका पहले बांदू आई थिंक इट्स कॉल्ड, सिटी में है, या उस पे there were 40,000 people watching the club game. The passion was incredible, and up to double triple हो गया होगा, मैं तो गया नहीं अरसे से ढाका and all. I have lots of friends there, a lot of good memories. Yep, it is. बहुत passionate है वहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा। No, it's a fantastic place to be, Bangladesh, and they've done really well for their economy as well. They've developed things very well, and they've developed their cricket really well. And you can see the fast bowlers that are now coming out of there. क्योंकि वो spin की बात होती थी जो आपने सीखी है वहाँ पे खेलनी, लेकिन अब तो फास्ट बॉलर भी बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। Well, we wish all the 4 teams that are colliding today all the best for their World Cup journey. So remember कि ये पहला मैच जो है धर्मशाला से आपकी खिदमत में आपसे कुछ लम्हे बाद लाइव आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, and that is अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जहाँ बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और उसके बाद पाकिस्तान के 1:30 बजे टाइम पर जो है दूसरा मैच, जो कि एक और बड़ा मैच है, श्रीलंका बामुकाबला साउथ अफ्रीका, वो भी शुरू हो जाएगा। सो हम उस पर आज स्विच ओवर करेंगे, और पेविलियन में हम सब की आपसे मुलाकात होगी आज रात को एट द एंड ऑफ द सेकंड गेम। सो thank God for that. With that, we'll say thank you to all of you. Remember, Ask the Pavilion hashtag. शाम को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, and enjoy the cricket ahead. 200 overs coming your way.